جب مجھے اس موقع کے لیے منادی کرنے کا کہا گیا، میں سوچ رہا تھا کہ کس ٹیکسٹ پر بات کی جائے، کلام سنایا جائے. تو میرا یہ تجزیہ رہا ہے کہ اکثر جب اس طرح کی ٹریننگز ہوتی ہیں، اس میں ہم انجوائے کرتے ہیں، بہت کچھ سیکھتے ہیں، دوستیاں جو بڑے لمبے عرصے تک چلتی ہیں، ٹیچرز کے ساتھ ریلیشن، بہت کچھ ہمیں ملتا ہے. لیکن اگر 100% لوگ ہیں تو ان میں میکسیمم 50 لوگ اس ٹریننگ کا 100% اطلاق کرتے ہیں. باقی جو 50% ہوتے ہیں وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں گم ہو جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ جو انہوں نے باتیں سیکھی ہوتی ہیں پریکٹس میں نہ لانے کے سبب سے مدھم ہوتی چلی جاتی ہے. غور کیجیے گا، آپ کے اوپر ریسورسز سرو کیے گئے. میں دیکھ رہا تھا لمبی لائن ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اس پورا ویک آپ کو ڈیڈیکیشن کے ساتھ ٹیچ کیا ہے، فیسیلیٹیٹ کیا ہے، جس کی جو قابلیت تھی اس کو پٹ ان کیا، اس لیے کہ آپ چرچ کی منسٹری کے لیے، سنڈے اسکول کی خدمت کو سر انجام دینے کے لیے تیار ہو جائے. اس کے علاوہ ڈونرس کو علیحدہ سے انہوں نے جو کچھ وہ دے سکے دیا. ایسے میں چاہتا ہوں آپ ایک ایسے میسج کے ساتھ اپنے گھروں کو لوٹیں جو آپ کو تحریک دیتا ہے. جو کچھ آپ کے اندر خدا نے ان دنوں میں رکھ دیا، اس کو استعمال کرنے کی تحریک آپ کو روح القدس کے وسیلے سے ملتی رہے. آپ یہ تو نہیں چاہتے کہ جو کچھ آپ نے سیکھا وہ ویسٹ ہو جائے، جی ایسا تو نہیں چاہتے. چاہتے ہیں کہ اس کو استعمال کریں، ہم لانا چاہتے ہیں. تو آئے میرے ساتھ خدا کی کلام کو بولیں. میرے ساتھ متی کی انجیل اس کا 25واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے. یہ توڑوں کی مثال ہے. خدا یسوع مسیح جب اپنے شاگردوں کے اس سوال کا یا 2 سوالوں کا جواب دے رہے تھے. پہلا سوال تھا تیرے آنے، اور دوسرا سوال تھا دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا. 24 باب میں خداوند نے ایک لانگ ڈسکورس دیا، بتایا کہ جب میں آؤں گا تو نشانات کیسے ہوں گے، دنیا کے خاتمے سے پہلے حالات کیسے ہوں گے. ایک بات جو خداوند اس سارے پیسج میں کہتے رہے، یا 2 باتیں. ایک بات یہ تھی کہ میں جلد آنے والا ہوں. خداوند یسوع نے بارہا اس کو اس پیسج میں ریپیٹ کیا. سیکنڈ بات تھی کہ میں انایکسپیکٹڈلی آؤں گا، میں غیر متوقع طور پر آؤں گا. اور ان 2 باتوں کا سم یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، تم ریڈی رہنا. تم میں ریڈینس ہونی چاہیے. جب تم یہ توقع کرے کہ میں کسی بھی وقت آ سکتا ہوں تو تمہیں تیار رہنا ہے. اسی مت میں خداوند یسوع مسیح نے 3 تماثیل، ایک مختار کی، عقل مند نوکر کی، دیانتدار نوکر کی جو نوکر چاکروں پر مقرر کیا گیا، اور اس کے بعد مشہور مثال 10 گواریوں کی، اور تیسری مثال خداوند یسوع مسیح نے 14ویں آیت سے لے کر 30ویں آیت تک. یہ سب کی سب اسی ضمن میں دی گئی ہے کہ تم تیار رہنا. 10 گواریوں کی مثال میں خداوند یسوع مسیح جس بات پر زور دیتے ہیں وہ ہے انتظار کرنا. اور جو توڑوں کی مثال ہے، اس میں خداوند یسوع مسیح نے نہ صرف انتظار کا کہا بلکہ انتظار کرتے ہوئے تم کام بھی کرنا. اب انتظار کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بیٹھے رہیں کوئی کام نہ کریں. ہمیں کام کرنا، جو کام ہم کو سونپا گیا ہے اس کو کرتے رہنا.
तारीख में एक ऐसा फिरका भी हो गुजरा जिन्होंने इस बात को लिटरली ले लिया कि हमें मसीह का इंतजार करना है। वो हर शाम पहाड़ पर चढ़ जाते और आसमान की तरफ देखते रहते कि हम मसीह का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार ऐसे नहीं करना। गवाहियों की मिसाल में ऑयल है, तेल है, ये वो ग्रेस है जो पाक रूह के वसीले से हमारे बातिन में रखा जाता है ताकि हम जागते रहें, हम होशियार रहें, हमने आसमानी जिंदगी की। और तीसरी मिसाल खुदावंद यीशु मसीह ने जो ये वो ग्रेस है जो हमको खिदमती जिंदगी गुजारने के लिए दिया जाता है। तफसीर को समझना और इनकी सही तफसीर करना ऑलवेज एक चैलेंज होगा। इनकी सही तफसीर करने का दूसरा तरीका यह है कि हम इसके कॉन्टेक्स्ट को देखें, इसके साथ सवाब को देखें, यानी इसके ऊपर क्या बात हो रही है, इसके नीचे क्या बात हो रही है, ये किस बड़े मौजू का हिस्सा है। तो यहाँ पर जो मौजू है वो मसीह की दूसरी आमद है, यीशु मसीह की आमद सारी है। अगर आप सुन रहे हैं तो वेरी फर्स्ट स्टार्ट में ही मैं आपको ये चैलेंज देता हूं। हमने मसीह का इंतजार करते हुए जो खिदमत करनी है वो दूसरी आमद के तनाज़ुर में करनी है, तो यीशु मसीह की सेकंड कमिंग की उम्मीद में करनी है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो दफ्न हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, हमारे गुनाहों को धोकर वो किबरिया के दाहिने हाथ की तरफ बैठा है, वो जल्द आने वाला है। इसीलिए हम इस वक्तों में होशियारी के साथ, तैयारी के साथ उस ग्रेस को इस्तेमाल में लाते हुए जो हमें पाक रूह के वसीला से दिया गया है अपनी खिदमत को सरअंजाम देते हैं। तो आए इस सवाले को पढ़ें, क्योंकि ये उस आदमी का सवाल है जिसने प्रदेश जाते वक्त अपने घर के नौकरों को बुलाकर अपना हाल उनके सुपुर्द किया। कहानियां आप सुनना और सुनाना पसंद करते हैं तो हमारे रबूनी इसमें बहुत अच्छे हैं। वो बड़ी बड़ी सच्चाइयों को कहानियों की सूरत में बताने के लिए मास्टर थे। बहुत बड़ी सच्चाई इस तमसील में भी हमें मिलेगी। लिखा है 15वीं आयत से, और एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, सबको एक जैसी क्वांटिटी में नहीं दिए गए। एक को 5, दूसरे को 2 और जो सबसे लास्ट में है उसको कितने? जस्ट 1 है। सारे ही होकर सारे ही इसके घर के, सबको अपना ही माल दे रहा है। अब उनका रिएक्शन क्या है? जिसको 5 तोड़े मिले उसने फौरन जाकर क्या करके, फौरन जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और पैदा कर लिए, क्योंकि उसने लेन देन किया। इसी तरह जिसे 2 मिले उसने भी 2 और कमाए, मगर जिसको 1 मिला था, ये सबसे मुख्य सारे लोग बकरा, उसने जाकर जमीन खोली। इसका माइंड ही फर्क तरीके से काम कर रहा है। अपने मालिक का रुपया छुपा हुआ बड़ी मुद्दत के बाद, कितनी मुद्दत? बड़ी मुद्दत के बाद उन नौकरों का मालिक आया और उनसे ही साफ लेने लगा। जिसमें 5 तोड़े मिले थे वो 5 तोड़े और लेकर आया कॉन्फिडेंस उसके अंदर और कहा, ऐ खुदावंद, तूने 5 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, अच्छे और त्यागदार नौकर। कौन सा नौकर? पहले नंबर पर गुड एंड देन फेथफुल, अच्छा और त्यागदार नौकर। शाबाश, तू थोड़े में त्यागदार, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी पास आकर कहा, ये पास आ गया है, करीब आ गया, इसे डर नहीं है, कॉन्फिडेंस है, फेस कर सकता है अपने मालिक को। खुदावंद तूने 2 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 2 तोड़े और कहा।
उसके मालिक ने उससे कहा, "ए अच्छे और दयालुदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयालुदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो।" और जिसको एक तोड़ा मिला था वो भी पास आकर कहने लगा, इसमें भी कॉन्फिडेंस है, लेकिन इसका कॉन्फिडेंस झूठ पर मबनी है। इसका झूठ बाद में रिवील होगा, कैसे ये मैनिपुलेट करने की कोशिश अपने ही मास्टर को कर रहा है। कहता है, ऐ फिरौन, मैं तुझे जानता था कि तू सख्त आदमी है, और जहां नहीं बोया वहां से काटता है, और जहां नहीं बखेरा वहां से जमा करता है। बस मैं डरा और जाकर तेरा बोरा जमीन में छुपा दिया। देख, जो तेरा है वो मौजूद है। उसके मालिक ने जवाब मुझसे कहा, ऐ शरीर और सुस्त, कौन सा नौकर? पहले नंबर पर ये शरीर है और दूसरे नंबर पर सुस्त भी है। तू जानता था, तेरी ही बात कर लेते, कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं, और जहां मैंने नहीं बखेरा वहां से जमा करता हूं। बस तुझे लाजिम था, क्या था? लाजिम था कि मेरा रुपया साहूकारों को देता तो मैं आकर अपना माल सूद समेत ले लेता। उर्दू में यहां पर लफ्ज सूद है, ग्रीक में प्रॉफिट है, नफा है, नफा समेत ले लेता। बस इससे वो तोड़ा ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं, जिसके पास पहले ही ज्यादा है, उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। इस निकम्मे नौकर को एक और एडजेक्टिव उसको दिया गया, एक और क्वालिटी उसको दी गई। ये निकम्मा है, अनवर्थी है, काम नहीं करता। नौकर को बाहर अंधेरे में डाल दो, ये जहन्नम की डेफिनेशन, वहां रोना और दांत पीसना होगा। तो ये वो तमसील है जो खुदावंद यीशु मसीह ने, जब मैं इसको पढ़ रहा था मुझे एक नई मोटिवेशन मिली है खिदमत को करने की, खिदमत में दयालुदार रहने के लिए। और मैं कोशिश करूंगा कि हम सब इसमें जो खुदा का कलाम किसकी सच्चाई है इसको जानकर मोटिवेट हो सके। इसमें 5 किताब मैं आपके सामने रखूंगा। पहला मुद्दा होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहली बात कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके बाद होगा रिएक्शन। रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हमारा रिएक्शन क्या? तीसरी क्वालिटी होगी रोकनी, यानी हिसाब किताब, और इसके बाद अगली जो क्वालिटी होगी वो होगी रिवार्ड। ये 4 बातें हैं जिनको हम देखेंगे। सबसे पहली बात, क्योंकि ये उस आदमी का सहारा, यहां पर भी खुदावंद यीशु मसीह बादशाहत को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मत्ती की इंजील में खुदावंद यीशु ने बादशाहत के मौजू को बहुत ज्यादा डिस्कस किया। यहां पर जो तमसील दी गई है बादशाहत की वजाहत के लिए ही, आप इसे बहुत बार सुनते हैं। तो माय क्वेश्चन इज दैट, क्या है बादशाह? जब मुख्तलिफ अकाउंट बादशाहत के हम मत्ती की इंजील में मुख्तलिफ जगहों पर पढ़ते हैं तो मेरे सामने ये बातें, आसमान की बादशाहत वो है जिसमें खुदा अपने बेटे यीशु के वसीले से, उस फजल के वसीले से, पाक रूह की कुदरत के वसीले से, जो हमें यीशु के मसलूब होने के वसीला से अता हुआ है, दिलों पर हुकूमत करता है। इसमें वो लोग शामिल हैं जो खुदावंद यीशु मसीह को दिलो जान से अपना खुदावंद, अपना आका मानते हैं। ये उसकी बादशाहत का हिस्सा है। इसके बाद दूसरी बात जो मेरे सामने आई, ये विजिबल और इनविजिबल चर्च को पेश करता है। खुदावंद यीशु मसीह जब भी बादशाहत की बात करते उसने ऐसी तमसील दी जिससे ये तासुर मिलता है कि ये देखा विजिबल चर्च और अनदेखा चर्च। ये विजिबल चर्च क्या होता है? हम सारे बैठे हैं, हम एक दूसरे को देख सकते हैं, फेलोशिप कर सकते हैं, ये विजिबल चर्च है। एफजे चर्च है, प्रेस्बिटेरियन चर्च है, चर्च ऑफ पाकिस्तान है, कैथोलिक है, ये विजिबल चर्च है।
डिनोमिनेशंस है, एक सिस्टम है, इसको हम विजिबल चर्च कहते हैं, लेकिन एक इनविजिबल चर्च जो नजर नहीं आता। इसमें वो लोग शामिल हैं जो नए सिरे से पैदा हुए, जो हकीकतन राष्ट्रवास। हम किसी को ये नहीं कह सकते तू राष्ट्रवास है और तू नहीं, हम ये फैसला नहीं कर सकते। खुदावंद यीशु मसीह जब बादशाहत की बात करते हैं तो उसमें खराब मछलियों की और ठीक मछलियों की बात, जब उसने बादशाहत की बात की तो उसने अक्लमंद कवारियों की और बेवकूफ कवारियों की बात, जब उसने बादशाहत की बात की उसने त्यागदार नौकर की और बदत्यागत नौकर की बात। इसका मतलब यह है कि आसमान की बादशाहत में दोनों किस्म के लोग शामिल हैं। इनविजिबल चर्च उसमें सिर्फ राष्ट्रवास शामिल है, लेकिन विजिबल चर्च में ईमानदार करने वाले और अच्छे दाने दोनों शामिल। अब बताएं 10 सवारियां जब इकट्ठी खड़ी होंगी कोई ये जजमेंट कर सकता होगा ये जो 5 है इनको साइड पे कर दो, ये वाली अक्लमंद है, और ये जो 5 है ये बेवकूफ। सबका लिबास एक जैसा, सबका हाथ श्रृंगार एक जैसा, सबके पास मछली एक जैसी, कोई नहीं कह सकता था इनमें से कौन अक्लमंद है और कौन बेवकूफ। जब चर्च में आते हैं सभी के सभी रूहानी, सभी के सभी खुदा से प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, कोई जज नहीं कर सकता इसके दिल में नामाफी छुपी है, कोई ये जज नहीं कर सकता इसके दिल में अभी तक रूह पुस्तक काम नहीं हुआ, कोई ये जज नहीं कर सकता अभी तक आसमानी जिंदगी की तुखरेजी इसमें नहीं हुई, ये तो अभी तक जिस्म है, ये तो सिर्फ दीनदारी की दशा इख्तियार किए हुए है, इसमें दीनदारी ने अभी तक असर नहीं किया है। तो यहां पर पहली बात तो हमें यह तय करनी है कि बादशाही ये क्या है। अब ये जो शख्स है ये जिम्मेदारियां देता है, अपने नौकरों को बुलाता है। इससे जाहिर है कि ये यस्सु के लोग थे, ये चर्च का हिस्सा थे, इनमें से सब अपनी तौर पर शायद चर्च का हिस्सा ना हो, लेकिन जाहिरी तौर पर सबके सब जानदार, सबके सब दबे, सबके सब पूरे तौर पर मालिक से वाबस्ता नहीं, थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन ये स्किलफुल लोग, ये ऐसे लोग हैं जिनको मालिक अपना माल दे सकता है। पहली बात की। दूसरी बात जिस पर मैं आज आपकी तवज्जो चाहता हूं, सबको एक जैसे तोड़े नहीं दिए। आपने पढ़ा पहले को कितने दिए गए, दूसरे को और तीसरे को एक। है तो सारे ही लोग, है तो सारे ही उसके घर के, लेकिन ये फर्क क्यों लिखा है? सबको उनकी अहलियत के मुताबिक उसने तोड़े दिए। यहां पर ये बात सीखने वाली, खुदावन जिसने हमको डिजाइन किया, जिसने हमको पैदा किया और हमें मां के पेट से ही उसने चंद एक सलाहियतें देकर पैदा किया है, वो जानता है इसमें मैंने कौन सी खिदमत देनी है और कौन सी नहीं देनी। पहली बात आपको ये याद रखनी है, हम सब लीडर्स नहीं हो सकते, हम सब पास्टर्स नहीं हो सकते, हम सब टीचर्स नहीं हो सकते, हम सब सिखाने वाले नहीं हो सकते, हम सब रहनुमाई करने वाले नहीं हो सकते। यही खुदा की कलीसिया की खूबसूरती है। कुछ लीड करने वाले, कुछ पीछे चलने वाले। आंख है तो कान भी है, पांव है तो हाथ भी है। पौलुस कहता है अगर हाथ ही हाथ होते तो क्या वो जिस्म कहलाता, क्या वो बदन कहलाता? बदन एक ही है, मालिक एक ही है, घर एक ही है, नौकर वो सब एक ही कितार में खड़े होते हैं, लेकिन सबकी अहलियत, खूबी, सलाहियत ये फर्क है और उसके मुताबिक उनको नेमतें दी गई है। मैं एक ही वक्त में मिशनरी नहीं हो सकता, मैं एक ही वक्त में इवेंजलिस्ट नहीं हो सकता। मुझे जो खिदमत दी है मेरी अहलियत के मुताबिक उसने दी है और इसको मुझे एक्सेप्ट करना है। अगर आप संडे स्कूल टीचर हैं, ये आपका सीजन है, ये आपका वक्त है, ये आपकी कॉलिंग है मौजूदा टाइम की। आपकी अहलियत के मुताबिक खुदावंद ने आपको संडे स्कूल टीचर होने के लिए बुलाया है,
इसके लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें और अपने ऊपर और अपने पुराने वाले खुदा के ऊपर कॉन्फिडेंस रखें कि अगर उसने मुझको बतौर संडे स्कूल टीचर बुलाया है तो वो मुझे अपॉर्चुनिटी देगा, मुझे विजडम देगा और मुझे इस खिदमत में फलदार करेगा। आमीन। इसके बाद अगली बात, पहली बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम सबको मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है। दूसरी बात है रद्द-ए-अमल क्या है, हमारा रिएक्शन क्या है। अब नेमतें तो सबको दी गई लेकिन रिएक्शन एक जैसा नहीं है। Why would we not? हर वो शख्स जो कलीसिया में है, बादशाही का हिस्सा है, वो तोड़े के बगैर है, वो टैलेंट के बगैर है, वो सलाहियत के बगैर है। पहले का रिएक्शन क्या है? फौरन जाकर, कब? आपकी बाइबल में यही लिखा है, कब जाकर? फौरन जाकर, इमीडिएट। उसने देर नहीं, उसने ताखीर नहीं, जैसे ही वो बाहर निकला है उसने बिजनेस करना शुरू कर दिया। यहां पर जो लफ्ज फौरन है, इसकी डेडिकेशन को, मालिक के साथ उसकी कमिटमेंट को शो करता है। मालिक ने इसीलिए उस पर भरोसा किया और 5 तोड़े। तो उसकी खिदमत में एक लम्हा भी जाया नहीं करना चाहता, इस कदर वो डेडिकेटेड है। और जब उसने डेडिकेशन के साथ काम किया, ऑब्वियसली नतीजा यही निकलने वाला था, 5 से 10 हो गए। जब डेडिकेशन के साथ काम किया जाएगा तो 5 के बाद 10 भी होंगे। इसके बाद हम जल्दी से आते हैं रिएक्शन जो तीसरे लोग करता है। इसमें पूरी ताकत पहले ने लगा दी है। 2 मिसालों के साथ मैं इसको वाज़ेह करना चाहूंगा। एक मिसाल है, उस औरत के नाम नहीं लिखा हुआ मरकुस की इंजील 14 बाब में, जिसने खुदावंद यीशु के सर पर एक ताला था, जटा मासूम पर खाली। लोग तनकीद करने लगे, खुदावंद यीशु ने क्या कहा? आपको याद है, बाइबल टीचर आप होने वाले हैं, संडे स्कूल टीचर हैं, आपने बच्चों को बाइबल सिखानी है कि जो कुछ कर सकती थी इसने किया। जो ग्रीक एक्सप्रेशन है वो ये है, इसकी हक ताकत क्लाइमेक्स पर जाकर अपनी पूरी ताकत, इससे आगे ये कुछ और नहीं कर सकती। इसने हिट किया है रूफ को, इसने उसको हिट कर दिया। इससे ऊपर ये क्या करेगी? ये सारी ताकत इससे लगा। इसका मतलब ये है, जब तू खिदमत में बाहर निकले, अपनी सारी ताकत को, अपने सारे टैलेंट को, अपनी सारी बीइंग को, अपनी सारी जात को इसमें पुट कर दे। ये सिर्फ एक ड्यूटी नहीं है, ये तेरे मालिक के साथ लव एक्सप्रेशन है। हाउ मच आई लव यू, आई एम टोटली डेडिकेटेड फॉर यू। मैं पूरे तौर पर तेरी मखसूस, मेरे वजूद का मकसद ये है, तुझे सब बेनिफिट होना चाहिए, तेरी किंगडम में एक्सपेंशन होनी चाहिए। ये मेरे वजूद का मकसद है। मुझे प्रॉफिट, वो बात की बात है। तुझे प्रॉफिट होनी चाहिए, मुझे जलाल, वो बात की बात है। तेरा नाम दुनिया में जलाल पाए, ये मेरा पैशन है। मसीह का नाम जाना जाए, मसीह के नाम से, उसकी साथ से, उसकी शख्सियत से, उसकी मर्जी से, उसके कलाम से लोग वाकिफ हो जाए। ये जानदार नौकर का पर्पस होता है। जॉन एरिक्सन पैदा एक बहुत बड़ा नाम है, उसने किताब लिखी है डायमंड इन द डस्ट। उसको वहां पर हराम मगज में चोट लगी थी जब वो 13 वर्ष की, पानी में डाइव किया, ऊपर आ ही ना था। सारा उसका निचला धड़ वो पैरालाइज है अभी तक। पिछले दिनों वो कैंसर में से गुजरी और मजबूर लोगों की रेस हो रही। उसमें वो जज, उसने उसने भी पार्ट लिया हुआ था। जब
وہ जीत गई, पहला नंबर आ गया, सारी रेस वाइंड अप हो गई। एक बाप और बेटा वो रेस दौड़ते ही जा रहे थे, दौड़ते ही जा रहे थे। हालांकि अगर भी यही मामला है, ये नहीं कि कितने कमा करना, अगर ये 5 के बजाय 3 भी ले आता है, लेकिन देनदार रहता, पूरी स्ट्रेंथ लगाई, तो उसको रिवॉर्ड मिलता। आसमान पर आपका मेरा मालिक ये नहीं देखेगा टर्न बैक कितना है, प्रॉफिट कितना है, वो ये देखेगा ताकत कितनी सर्व की, देनदार कितना रहा, तेरा दिल कैसा था, खिदमत की मोटिवेशन क्या थी, तूने कैसे खिदमत की है, इन बातों को देखा जाएगा। संडे स्कूल में बच्चे कितने हैं, बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे, मेरा नाम कितना जाना जा रहा है, घर में जाकर मेरे बारे में बच्चे तारीफें करते हैं नहीं करते, बात की बात। पहले मैंने अपना काम किया है कि नहीं, फिर के साथ मैंने खिदमत को अंजाम दिया है कि नहीं, डेडिकेटेडली मैंने किया है कि नहीं। अब सारी बात छोड़कर मैं एंड बनाने लगा। इनका हिसाब दिया जाता है, पहला बड़ी एतमाद और खुशी के साथ हिसाब किताब देता है, 5 स्टोरी इसके सुपुर्द किए गए, मानता है कि देने वाला तू ही है, मंगा तू ही है, अगर तू ना देता तो मैं ये ना करता था। एक जुमला सिर्फ बोला गया उसके लिए, एक लफ्ज पहले बोला, अगर उसको मैं असल जबान में बोलूं तो वो है इप्सिलॉन और उप्सिलॉन, ये 2 लफ्ज होते हैं। मैं एक्सप्रेशन आपको बस देना चाहता हूं, कोई बात वेल डन, इसका मतलब इंग्लिश में है वेल डन, उर्दू में किया गया है शाबाश। ये जुमला बोला, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं अपनी पूरी बीइंग विद एवरी फाइबर ऑफ माय बीइंग ये बात कहूंगा। आसमान पर मेरे मालिक से सिर्फ मुझे ये एक ही लफ्ज सुनने को मिल जाए, वेल डन, शाबाश, इट्स इनफ फॉर मी। मैं शाबाशी से नबूवत से जाऊंगा, मुझे शाबाश मिल गई, क्रिएटर से शाबाश मिल गई, मेरे सेवियर से मैं नाचूंगा, जो कुछ मैं कर सका अपनी खुशी के इजहार के लिए करूंगा। मेरे मालिक ने मुझे शाबाश दी, लेकिन उससे बढ़कर भी आ गया, तू थोड़े में जानदार रहा, मैं तुझे ज्यादा का मोहतार करूंगा, तेरी समथिंग एल्स मैं और तुझे दूंगा। इसमें बात नहीं करते कि आसमान पर रिवॉर्ड्स के रैंक्स होते हैं, जैसे फरिश्तों के रैंक्स हैं, ऐसे बिलीवर्स के रैंक्स जैसे जमीन पर है आसमान पर भी होंगे। और आसमान पर हमारा मर्तबा क्या होगा, हमारी जमीनी खिदमत इसको तय करेगी, हम कैसे किस दिल के साथ इसको सरंजाम दे रहे हैं। और फिर लिखा है अपने मालिक की खुशी में शामिल हो। इसका मतलब यह है जैसे मालिक खुश, अब तो भी खुश हो, मिशन कंप्लीट हो चुका है, लोगों को निजात मिल चुकी है। संडे स्कूल में तूने बेहतर काम किया, बच्चों की काउंसलिंग तूने अच्छी की, बहुत सारे बच्चे तेरे वसीले से मसीह के पास आ गए, मिशन अकम्प्लिश्ड। आओ सेलिब्रेट करें, आओ शपथ में हम चले, शादमानी करें, सेलिब्रेशन में कुछ मुतमिन। शरीर नौकर साहब आते हैं, साफ होते हैं, ये शरीर क्यों है, इसकी 3 वजह। पहली, उसमें कोई फल पैदा नहीं, मसीही जिसके अंदर रूह कुछ का काम हो चुका होता है, बेफल कभी नहीं होता, वो फल लाता ही लाता है। यहां पर जो पहले नौकर है, इसलिए उनको इसलिए ज्यादातर अच्छा नौकर नहीं कहा गया कि 5 टोरे और प्रोड्यूस किए, वो अच्छे और ज्यादातर हैं, इसीलिए उन्होंने 5 टोरे प्रोड्यूस किए। गेटिंग द पॉइंट, उनका किरदार अच्छा था, पहले से ही अच्छा था, अंदर सॉफ्टवेयर उसने पहले से ही चेंज कर दिया था, इसलिए जब उन्होंने फील्ड में काम किया तो जबरदस्त इंपैक्ट हुआ, पाक रूह की कुदरत जिंदगी पर नाज़िल हुई। खुदा उन साथ काम करता है क्योंकि हम उसके पार्टनर। फिर दूसरी बात, मालिक के किरदार पर हमला कर दिया, कहता है तू सब का,
اکثر بلیورز بھی یہ آیت کو کوٹ کرتے ہیں اپنی دعا میں، تو اس کا صحیح مطلب کیا ہے؟ وہ مالک کو کہتا ہے تو سخت آدمی ہے، اس کا مطلب ہے تو جلدی بات نہیں کرتا، رحم نہیں کرتا، ڈیفیکلٹ پرسن ہے، ٹف پرسن ہے، مجھے پتا ہے، کہتا ہے جہاں نہیں ہوتا وہاں کاٹتا ہے۔ آپ تو کہیں جہاں ہم نے نہ بویا ہو وہاں کاٹے، یہ چوری نہیں کہہ رہا تھا، یہ اسٹیلنگ ہے۔ جہاں نہیں بکھیرتا وہاں اکٹھا کرتا، کیا یہ بھی چوری نہیں ہے؟ تو کہہ رہا ہے تو لوگوں سے چھینتا ہے، زبردستی کر دیتا ہے۔ یہ مالک کو کہہ رہا ہے، یہ نوکر اپنے مالک کے رحم کو دیکھنے کے قابل، یہ اندھا ہو چکا ہے اور پھر کہتا ہے میں ڈرا، یہ بھی اس کا دل۔ مالک کہتا ہے اچھا اس کی گل مان لے، اگر تم نہیں جانتی تھا تو اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا تو جاتا ساہوکاروں کے ساتھ، تو کاروبار کرتا، تو وہ بھی نہیں کیتا۔ میرا مطلب تو سرے بھی چوٹ کو نہیں جانتا، تو مجھے بندھانے کی کوشش کرتا، کہا شریر اور سست ہوا۔ یہ اس لیے نہیں کہ میں سخت ہوں، یہ اس لیے ہے تو شریر اور سست ہے، تیری دل کی خواہشوں نے، جسم میں زندگی گزارنے کے سبب سے، روح میں نہ چلنے کے سبب سے، تیری لائف میں ڈیڈیکیشن نہ ہونے کے سبب سے تو اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا نہ کرتا رہا۔ کھیت میں کام کیا لیکن اپنی ریپیوٹ کے لیے، کھیت میں کام کیا اس لیے کہ مجھے نفع ملے، یہ تیرے دل کی باتیں رہی، تو اس لیے مجھ سے ڈرتا تھا، جا کر چھپا دیا، بڑی ہوشیاری کر رہا ہے، جو تیرا ہے تیرے سامنے ہے۔ مالک کو پروفٹ میں، بعد میں دلچسپی تھی، پہلے کردار میں تھی۔ اب دیکھیں ایک اور ایک دو ہو جائیں، یہ کتنی پروفٹ ہے؟ کیا بہت بڑی پروفٹ ہے؟ مالک کو کیوں غصہ آیا کہ تو پروفٹ نہیں ہونے دیتی، تو میرا بہت نقصان کر دیتا ہے، صرف ایک ہی تو توڑا ہے، پھر ایک کردار میں افیکٹ ہے، نظر ہے تیرے اندر، جانتا نہیں ہے اپنے مالک کو۔ صحیح باتیں یاد رکھیں، لیکن یہ میں خود سے انتظار کرتا ہوں آپ کے نام کے لیے، کہیں ہیرے کی نوٹ سے آپ کے دل میں لکھ دیا، آپ کی انٹرنل میموری میں، انٹرنل میموری میں اندر تک گھس جائے، جس خدا کی تو خدمت کرنے جا رہا ہے اس کے اصلی کردار کو تو جانتا ہے وہ کون ہے، تو جانتا ہے اس کی شخصیت کیا ہے، تو پالا اس کے ساتھ، تو ریلیشن اس کے ساتھ، اس کے کلام کی سمجھ، یسوع کون ہے؟ یسوع نجات دہندہ ہے، تیرا بھی ہے کہ نہیں؟ یسوع خدا کا بیٹا ہے، تو جانتا بھی ہے کہ نہیں؟ یسوع جلالی ہے، کبھی اس کے جلال کا ایکسپیرینس ہوا بھی کہ نہیں؟ یسوع بہت بڑا ہے، کبھی اس کی عظمت کو دیکھا بھی کہ نہیں؟ کیا بچوں کو سکھائے گا؟ تیرا دل ابھی تک روشن نہیں ہوا، تیرے دل میں ابھی تک کام نہیں ہوا، جب تک یہ نہ ہوا کوئی پروڈکشن نہیں۔ اس سے پہلے کہ خدا ہمیں پاسٹر ہونے کے لیے، ٹیچر ہونے کے لیے بلائے، وہ ہمیں بیٹے بیٹیاں ہونے کے لیے بلاتا ہے۔ فرسٹ نو کہ اس کا بیٹا ہونا کیا ہے، اس کے ساتھ ریلیشن کیا ہے، اسی میں سے ساری چیزیں فلو کریں گی، اسی میں سے سب کچھ نکلے گا۔ تو ہمارا اس کے ساتھ ریلیشن ہے کہ نہیں، اس پر غور کیجیے۔ اگر آپ پھل پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں، سیکنڈ کمنگ اس وقت ججمنٹ ہوگی، حساب ہوگا، وہ بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرے گا، سچ کو جھوٹ کا ان کا نکارا ہوگا، ان کا جھوٹ ظاہر ہوگا، چاندی سونے کے ردے، دوسرے کے ردے وہ بھی ظاہر ہو جائیں گے، اور پھر کہا جائے گا اسے باہر، یہ باہر سمجھتے ہیں کیا ہے؟ آؤٹ آف ہر پیسے، جیسے بات سکتے ہیں میری نظر تمہیں پوچھا تھا، اتنی شرارت ہے تو آپ خدا برداشت نہیں کر سکتے۔ جہنم ایک ایسی جگہ ہے، جہنم کی ڈیفینیشن سمپل ہے، باہر خدا کی حضوری سے باہر، خدا کی وہ حضوری جو مطمئن کرتی ہے، شرمائی دیتی ہے، انکریج کرتی ہے، فرینڈلی ہے،
वहां पर खुदा की मौजूदगी है, लेकिन कहर करने वाले खुदा, सजा देने वाले खुदा, इसको वहां रोना और दांतों का पीसना, ये बड़ी टेरिबल कंडीशन है और ये कंटिन्यूस है, जारी रहेगी। रोना है, रोना है, रोना है, रोना है, और वो क्या दांत पीसते हैं और पीसते हैं, कोई वक्त नहीं। 5 साल के बाद, 10 साल के बाद कोई वक्फा नहीं मिलेगा। ये अभी है, जो कुछ उसने आपको दिया उसका हिसाब बोलेगा। आपने संडे स्कूल में एक वीक गुजारा, आपके टैलेंट बैग में बहुत सारी चीजें नहीं रखी गई। हाउ यू विल यूज इट, कैसे इसका इस्तेमाल करोगे, ये सवाल है। इस पर आप सब, हम जो उसके घर में काम करने वाले लोग हैं, थैंक यू सो मच।